guys, welcome back to my channel Maths Made Easy by Himanshu Kumar. So before starting the topic, I need to say something first. देखिए गाइज, मैंने एक मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है. क्या हुआ है जो मैं बताना चाहूँगा जरूर. कोई एक बंदा था जो मास्क ऐसे ही यूज़ करने के बाद फेंक दिया था. दूसरा मास्क उसने खरीदा. तो मैंने उनसे कहा कि आपने मास्क ऐसे ही सड़क पे क्यों फेंक दिया, कहीं डस्टबिन में फेंकते या लाइक कहीं और जगह फेंकते. तो वो उनका कहना था कि इससे तुमको क्या फर्क पड़ता है. ठीक है, तो ये मैं कहना चाहता हूँ. व्हाट आई वांट टू से इज that corona is not the virus, we humans are. So please guys, just don't do all these stuffs. It will show you that you are unhuman. Okay, so try to be human in this situation. Okay, so let's start the topic today. On the very last video I have taught you how to solve questions related to simplifications and related to cubes, squares, square root and cube root, right? Today I am going to deal the questions with percentage. So like, what do you mean by percentage? What does the percentage mean? So percent means out of 100 how much you are calculating, isn't it? So to convert into percentage, what we do, we multiply fractions by 100, right? And if you want to remove the percentage sign, if you want to convert into fractions, then what we do, we divide by 100. So what I have done over here, if I am considering something as 100%, so it is 100 by 100, so it is 1. So any value in this universe, if you are having 10 rupees, that is 100% value you are having. बट आप यदि उस 10 रुपए को कंपेयर कीजिएगा अंबानी के रुपए से, तब थोड़ी ना 100% होगा. तब तो 100% होगा नहीं, जाहिर सी बात है. तो 100% क्या है कि आपके पास यदि कुछ भी वैल्यू है, आपके पास जो कुछ भी वैल्यूज है, आपके पास 10 रुपए है, 100 रुपए है, 500 रुपीज, वॉट एवर द वैल्यू आर हैविंग, दैट इज 100%. जस्ट नोट इट डाउन. ओके, सो व्हाट आई हैव डन, this one value is considered as 100%. okay, अब यदि 1 को यदि डिवाइड करते जाए 2 से तो क्या होगा, 100 by 2 यानी 50%. 1 को यदि 3 से डिवाइड करते हैं तो 100 by 3, that is 33 upon 1 by 3% और 33.33%, राइट? सो इसी तरह 1 by 4%. अब अच्छा, आपको याद क्या रखना है कि 1 by 3 यदि 33.33% है तो 66.66% कितना होता होगा, that is nothing but 2 by 3. So that's what we are going to deal with today. 1 by 4 is 25%, 1 by 5, 1 by 6 is 16 upon 2 by 3%. That is nothing but it is equals to 16.66%. 1 by 7 is 14 upon 2 by 7% or 14.28%. 1 by 8 is 12.5% or 12.5%. 1 by 9 is 11 upon 1 by 9% or 11.11%. 1 by 10 is 10%. 1 by 11 is 9 upon 1 by 11% or 9.09%. What you have to do, you have to just remember all these values till 1 by 20th value. So here I have written 1 by 15. 1 by 15 values I have written into percentage. That what will be the percentage? 1 by 12 will be 8.33% or 8 upon 1 by 3%. 1 by 13 is 7 upon 9 by 3%, 13%, or you can convert it into decimal as well. It is not needed right now. 1 by 14 is 7 upon 1 by 7% or 7.07%. 1 by 15 is 6 upon 2 by 3% or 6.66%. So guys, 1 by 15 equals to कितना होता है, 6 upon 2 by 3%, that is 6.66%. 1 by 16 is 6 upon 1 by 4%, that is nothing but 6.25%. 1 by 17 is 5 upon 15 by 17%. You can convert into that decimal point as well. 1 by 18 is equals to 5 upon 5 by 9%. 1 by 19, 5 upon 5 by 19%. And 1 by 20 is 5%. Okay, so guys, the story doesn't end here. कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है. तो फिर और क्या करते हैं, ये तो आपका सिंपल सा मेथड उसने दे रखा है. अब
क्वेश्चन में ये 12.5% यदि आपको मान लीजिए नहीं दिखता, आपको दिखता है 37.5%, व्हाट विल यू डू? सो ये देखिए 12 3 36.5 का 3 टाइम्स कितना होता है 1.5, दैट इज 37.5 होता है। तो 37.5% का मतलब क्या हो गया 3/8 फ्रैक्शनल वैल्यू। अब 3/8 का अब जो भी बोलेगा आपको ऑफ समथिंग निकालने के लिए 3/8 मान लीजिए 37.5% ऑफ 64 सपोज या 328 का निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो 328 का 37.5% निकालना है, क्या करेंगे 3/8 मल्टीप्लाई बाय 328। तो 8 4 जा 8 1 जा 41, 41 3 जा कितना होता है 123 होता है, राइट। ठीक, उसी तरह 1/11 जो था 9/1/11% या 9.09%। तो यदि हम कह दें आपको कि 27.27% का वैल्यू निकालिए किसी भी वैल्यू का, तो 27.27% कितना होता है? तो वो होता है 3 टाइम्स ऑफ 9.09% होता है कि नहीं, राइट। अब ये 3 टाइम्स जो है, तो 3 टाइम्स यदि फ्रैक्शन वैल्यू है तो 3/11 होता होगा। अब मान लीजिए कि आपके पास दे दिया है 343 सपोज 341 का मान लेते हैं कि आपको निकालना है कितना 27.27%। तो 341 जो है अब 27.27% को क्या लिखेंगे 3/11। अब 341 का टेबल जा रहा है 31 टाइम्स में जा रहा है, अब 31 3 कितना होता है 93 होता है, राइट। सो द वैल्यू विल बी 90। उसी तरह यहाँ पे तो यदि मान लीजिए कि 21.21% दिया हुआ है, मतलब इसका वैल्यू लेना है 3/14। उसी तरह आपका अच्छा इसको छोड़ दीजिए जो जनरली आता है, लाइक मान लीजिए 44.44%, इसका मतलब हो जाएगा 4/9। तो मान लीजिए 45.45%, इसका मतलब हो जाएगा 5/11। ये चीज दिमाग में डाल लीजिए, ठीक है, यदि मेंटली आपको सॉल्व करना है, ठीक है। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू जस्ट गो थ्रू द एंटायर वीडियोस, द प्रीवियस वीडियो दैट आई हैव ऑलरेडी टॉट यू, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन से रिगार्डिंग जितने भी आईबीपीएस, एसबीआई और एलआईसी जितने भी बैंकिंग के क्वेश्चंस हैं सारा मैं करवाऊंगा, हर एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस करवाऊंगा। आज मैं परसेंटेज से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, अभी फिलहाल समझाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अब ये 1/16 का वैल्यू क्या था 6.25%, 12.5% की वैल्यू कितना है 1/8 है ना, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। उसी तरह ये सब वैल्यूज आपको दिमाग में बस रखना है, ये दिख जाए यानी 1/19 करना है, ये दिख जाए 1/18 करना है, दैट्स इट, क्लियर। सो गाइस ये मैंने क्वेश्चन लिया है, ठीक है, ये आईबीपीएस का ही क्वेश्चन है, जाहिर सी बात है दिख रहा होगा इतना कॉम्प्लिकेटेड सा। और एसबीआई प्री का भी एक क्वेश्चन इसी तरह का एकदम एग्जैक्टली सेम ही क्वेश्चन था, ठीक है। ये क्वेश्चन की बात करें, आप देखिए 11.11% जो है यदि घटा दिया जाए तो 88.89% आता होगा, है कि नहीं। तो 11.11% कितना था 1/9 वैल्यू था ना, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 8/9 हो जाता होगा, है कि नहीं। 8/9 ऑफ 333 माइनस 1/6, इसका वैल्यू हमने बताया था क्या 1/6 ऑफ 186 प्लस का साइन है 12.5% कितना बताया था हमने 12.5% 1/8 बताया था, राइट। इसका 328 का, ठीक है। ये ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में आप रख सकते हो, ऐसे मल्टीप्लाई का साइन है तो कोई दिक्कत नहीं है। 37.5%, अभी याद कीजिए थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि 12.5% का 3 टाइम्स करेंगे तो 37.5% आएगा, यानी 1/8 है तो ये कितना आ जाएगा 3/8, किसका 576 का। लेकिन उसने कहा डिवाइड कीजिए, ठीक है, डिवाइड कर देंगे। अब देखिए 14.29%, अब 14.28%, देयर इज नथिंग डिफरेंस, इजंट इट, 0.01% का कोई डिफरेंस नहीं होता है, तो 14.28% ही इसे मानना है। अब 14.28% किसका वैल्यू के बराबर था 1/7 के बराबर था, राइट। तो किसका हो जाएगा 189। सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा, सॉल्व करने में टाइम लगेगा, जाहिर सी बात है अब नहीं लगेगा। 9 3 27, 9 6 for 27, राइट, 63 ना, 37 8 जो आ रहा है 8 7 56, 5 24 29, 6 3 18 31 प्लस 8 4 8 1
ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई ही रखिए, ठीक है। 3 8 8 7 56, 8 2 16, 72 3 कितना होता है, 3 2 6, 3 7 21। डिवाइड उसने करने बोला था, चलिए इसको जो है काट दीजिए। 7 1 डिवाइड है, 7 1 7 2 14, 7 7 49, 29 है, राइट। ये इसको तो सॉल्व कर सकते हो आप। 296 में से 31 गया तो 65, राइट। 41 मल्टीप्लाई बाय 216 बाय 27। 3 के टेबल से जा रहा है 3 के टेबल से 216। अच्छा ये 3 का टेबल से जा रहा है, राइट। 72 एंड देन 9। अच्छा ये तो चला ही जा रहा है, तो कितना बच रहा है, 8 8 4 32 एंड 265। ऐड कर लीजिए जो आएगा बस वही आंसर। 8 5 13 3 9 एंड 593। क्लियर है। तो गाइस ये दूसरा क्वेश्चन है। 300% ऑफ 1420, 125% ऑफ 500, सब 1500 रूट ओवर क्वेश्चन मार्क, तो x मान लीजिएगा 6108। अब देखिए 300% का मतलब क्या होता है, 100% मतलब 1 टाइम, तो 300% कितना होता होगा, 3 टाइम्स। तो 142, 3 2 6, 14 3 42, इतना होता होगा। और 125%, 100% तो 1500 खुद होता होगा। अब 25% मतलब क्या होता है, 1/4। अब 1/4 मतलब हाफ का हाफ। पहला वीडियो हम बता रहे हैं, पहला वीडियो आप जाकर चेक करना। 1/4 का मतलब क्या होता है, हाफ का हाफ। 1500 का हाफ 750, 750 का हाफ 375, 375 इसमें क्या करना था, जोड़ देना था, 1875 हो जाएगा। रूट ओवर x मान लेते हैं 1601, 6108 जो है वो इस तरफ आप ले आओ, ठीक है। 6108 जो है आप लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, सॉल्व कर लो। अब कितना हो रहा है, 6135, राइट। 6108 रूट ओवर एक्स, यानी x का वैल्यू यदि 27, राइट। 27 का स्क्वायर कितना होता है, बस 27 का स्क्वायर जो भी होता होगा पता है या भूल गए। पहले ही क्लास में आपको बोला गया था कि 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर लर्न करने हैं। चलिए नहीं पता तो बता दे रहे, 729 होता है, ठीक है। सो गाइस आज तक का सेशन में यही 2 क्वेश्चंस मैंने आज करवाया, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है परसेंटेज का मैंने आपको पूरा दिया है। सो जस्ट गो थ्रू इट गाइस, ठीक है। और प्लीज गो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड आपके जो अपकमिंग एग्जाम्स में IBPS का जो एग्जाम आने वाला है, यदि मेरा क्लासेस यदि आपको पसंद आता है, जस्ट पिंग मी एंड कमेंट ओवर दैट, ठीक है। और जो भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं आपके पास, यू कैन ब्रिंग इट टू मी, देयर वोंट बी एनी इश्यूज related with that, okay। So thank you guys, stay safe, stay positive, okay, love you all।